مسیح یسوع میں آپ سب کو سلام. آپ کو بھی سلام. خدا کے گھر میں آپ سب کا استقبال ہے اور میں تو بہت خوش ہوں. آپ لوگ بھی خوش ہیں خدا کے گھر میں آ کر؟ تو آئیے اب عبادت کا آغاز کرتے ہوئے اپنے بھائی ڈیوڈ سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ دعا میں ہماری رہنمائی کریں اور پوری عبادت کو خدا کے حضور میں رکھیں. آئیے ہم دعا کریں گے. اے زندہ آسمانی باپ، ہم تیرا شکر کرتے ہیں اس وقت کے لیے جو تو نے ہماری زندگی میں بخشا. تیرا شکر اور تیری تعریف ہو. ہاللویا. اے زندہ آسمانی باپ، خاص طور پہ میں دعا کرتا ہوں اس عبادت کے لیے جو ہم تیرے حضور آئے ہیں. تیرے آسمانی تو ہمیں اپنا فضل بخش. تیرے آسمانی خاص طور پہ جب ہم کلام سنیں اور تیرے حضور ہمارا گیت گانا، ہمارا ساز و سامان پہ تیری برکت ہو. تیرے آسمانی تو ایک ایک جان کو تو برکت دے. آسمانی باپ، جو رستے میں ہیں تو ان کو خیریت سے اس گرجا گھر میں لے کے آ تاکہ وہ بھی ہمارے ساتھ مل کر تیری تعریف کر سکیں. اے پارے آسمانی، خاص طور پہ دعا کرتا ہوں اپنے بچوں کے لیے. پہلے آسمانی ان کو بہت سی برکت دے. پہلے آسمانی جس طرح یہ قد و قامت میں بڑھتے ہیں، اے آسمانی تیرے جلال میں بھی یہ بڑھتے چلے جائیں. اے پہلے آسمانی تو ہمارے ساتھ ہو. ہمیں تو یہ توفیق بخش کہ پیارے آسمانی ہم جب تیرا نام لیں تو پیارے آسمانی اس سے ہم برکت پائیں. کیونکہ خداوند تیرا نام لینے سے ہم نجات پاتے ہیں. کیونکہ پیارے آسمانی تیرے نام میں ہی نجات ہے اور تیرے کلام میں ہمیں تمہیں فضل بخش دے کہ ہم تیرا کلام جب سنیں تو دوسروں تک بھی پہنچانے والے ہوں. پیارے آسمانی میں تیرے خادم کو تیرے حضور رکھتا ہوں. تو اپنا فضل بخش جس طرح وہ خداوند نیک نیکی سے پیارے آسمانی تیرے کلام کو شیئر کرتا ہے. پیارے آسمانی تو اپنا اور فضل بخش تاکہ خداوند اور پوری جان سے خداوند وہ تیرے کلام کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچائے. پیارے آسمانی تو ایک ایک جان کے ساتھ ہو. تو پوری عبادت میں ہم سب کو اپنا فضل بخش تاکہ تیرے حضور ہم جو بھی گیت گائیں اور تیرا کلام سنیں اسے ہم پیارے آسمانی 100 گنا پھل لائیں. تیرا پیارا اور مبارک نام رکھیں. آمین. خدا کا بہت شکر ہے کہ ہم لوگ مسیحی ہیں. آمین. اور اس ایمان کے لیے اس کا شکر کرتے ہیں کہ ہم اس ایمان میں بڑی مشکلوں میں بڑی مصیبتوں میں بھی اپنے ایمان کو ہم مضبوط رکھتے ہیں. آئیے اپنے ایمان کا اقرار کریں رسولوں کے عقیدہ کی شکل میں. درخواست ہے کہ آپ لوگ کھڑے ہو جائیں پلیز. میں ایمان رکھتا ہوں خدا قادر مطلق باپ پر جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اور اس کے اکلوتے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح پر جو روح قدس کی قدرت سے پیٹ میں پڑا، ہماری مریم سے پیدا ہوا، پینتوس پلاطس کی حکومت میں دکھ اٹھایا، مصلوب ہوا، مر گیا اور دفن ہوا، عالم ارواح میں اتر گیا، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، آسمان پر چڑھ گیا اور خدا قادر مطلق باپ کی داہنی طرف بیٹھا ہے، جہاں سے وہ زندوں اور مردوں کی عدالت کرنے کو آئے گا. میں ایمان رکھتا ہوں روح قدس پر، پاک خلیہ کلیسیا پر، مقدسوں کی رفاقت، گناہوں کی معافی، جسم کے جی اٹھنے اور ہمیشہ کی زندگی پر. آمین. اب وقت ہوا ہے کہ ہم خدا کے کلام میں سے حوالہ پڑھیں گے اور میں درخواست کروں گا بیٹی جیفنی سے کہ وہ اردو میں آ کے تلاوت کریں. ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت
पालूस रसूल का खत तीतुस के नाम, उसका 3 बाब, उसकी 1 से 10 आयत। उनको याद दिला कि हाकिमों और इख्तियार वालों के ताबे रहें और उनका हुक्म मानें और हर नेक काम के लिए मुस्तहद रहें। किसी की बदगोई ना करें, तकरारी ना हो, बल्कि नरम मिजाज हो और सब आदमियों के साथ कमाल हलीमी से पेश आएं, क्योंकि हम भी पहले नादान, नाफरमान, फरेब खाने वाले और रंग बिरंग की ख्वाहिशों और ऐश और इशरत के बंदे थे और बदखुआई और हसद में जिंदगी गुजारते थे, नफरत के लायक थे और आपस में कीना रखते थे। मगर जब हमारे मुनज्जी खुदा की मेहरबानी और इंसान के साथ उसकी उल्फत जाहिर हुई तो उसने हमको नजात दी, मगर रास्तबाजी के कामों के सबब से नहीं जो हमने खुद किए, बल्कि अपनी रहमत के मुताबिक नई पैदाइश के गुसल और रूह कुदस के हमें नया बनाने के वसीला से, जिसे उसने हमारे मुनज्जी यीशु मसीह की मार्फत हम पर अफराद से नाज़िल किया, ताकि हम उसके फजल से रास्तबाज ठहर कर हमेशा की जिंदगी की उम्मीद के मुताबिक वारिस बने। ये बात सच है और मैं चाहता हूँ कि तू इन बातों का यकीनी तौर से दावा करे, ताकि जिन्होंने खुदावंद का यकीन किया है वो अच्छे कामों में लगे रहने का ख्याल रखें। ये बातें भली और आदमियों के वास्ते फायदा मंद है, मगर बेवकूफ़ी की हुज्जतों और नस्ब नामों और झगड़ों और उन लड़ाइयों से जो शरीयत की बाबत हो परहेज कर, इसलिए कि ये ला हासिल और बेफायदा है। 1-2 बार नसीहत करके बदईती शख्स से किनारा कर। खुदा का पाकलाम पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बस से बरकत हो। जो हवाला भी पढ़ा गया उसका इंग्लिश वर्जन अभी पढ़ते हैं हम। टाइटस chapter 3 from verse 1 to 10. Remind them to be subject to rulers and authorities, to obey, to be ready for every good work, to speak evil of no one, to be peaceable, gentle, showing all humility to all men. For we ourselves were also once foolish, disobedient, deceived, serving various lusts and pleasures, living in malice and envy, hateful and hating one another. But when the kindness and the love of God our Savior toward man appeared, not by works of righteousness which have done, but according to His mercy, He saved us through the washing of regeneration and renewing of the Holy Spirit, whom He poured out on us abundantly through Jesus Christ our Savior, that having been justified by His grace, we should become heirs according to the hope of eternal life. This is a faithful saying, and these things I want you to affirm constantly, that those who have believed in God should be careful to maintain good works. These things are good and profitable to men, but avoid foolish disputes, genealogies, contentions, and strivings about the law, for they are unprofitable and useless. Reject a divisive man after the first and second denomination. This is the word of God. और अब वक्त हुआ है कि हम खुदा के हुजूर में उसके नाम की तमजीद और प्रस्तुत करें। दरख्वास्त करता हूँ चर्च की क्वायर से कि वो खुदा की हमद और तमजीद में हमारी रहनुमाई करें।
इस येलो बुक के अंदर है गीत नंबर 300, पेज है 369। यीशु के नाम में हम फतह पाते हैं। और इसके बाद हम गाएंगे गीत है 342, पेज है 406 पे, जिंदलाई यीशु दे नाम में। हालेलुया। सब ताली बजा कर आए, खुदा की तमजीद करें। गीत का नंबर बता। गीत है 342 और पेज है 406 पे, येलो बुक के अंदर है।
होर जान दे। होरे करदा गुलाम बन जावे तू, होरे राजा ही झंडा लेने रामी तू। होरे करदा गुलाम बन जावे तू, होरे राजा ही झंडा लेने रामी तू। विच यारियां दे भावे चिड़ जावे, विच यारियां दे भावे चिड़ जावे, असीं ने कुछ होर जान दे, असीं ने कुछ होर जान दे, असीं ने कुछ होर जान दे, असीं ने कुछ होर जान दे। अभी इस बोल नंबर गाएंगे 24, रब खुदावन बादशाह है। ये सबको आता है तो सब हम सारे खड़े होके खुदावन के लिए खुदावन को मुबारक कहेंगे। सब ताली बजाएं। ये पुरानी ही तर्ज पे हम लोग गाएंगे रब खुदावन बादशाह। रब खुदावन के बादशाह है, ओ ये राजा बादशाह है। रब खुदावन के बादशाह है, ओ ये राजा बादशाह है। ये राजा बादशाह कौन है, कौन बादशाह का राजा। ये राजा बादशाह कौन है, कौन बादशाह का राजा। राज लगे निकले तो रावण, ओ बादशाह चला जा। रब खुदावन के बादशाह है, ओ ये राजा बादशाह है। रब खुदावन के बादशाह है, ओ ये राजा बादशाह है। ऊँचे करो सिर दरवाजे, ऊँचे हो सब तारो। ऊँचे करो सिर दरवाजे, ऊँचे हो सब तारो। चाँद राजा बादशाह आवे, सिर सब ऊँचे करो। रब खुदावन के बादशाह है, ओ ये राजा बादशाह है। रब खुदावन के बादशाह है, ओ ये राजा बादशाह है। एक राजा बादशाह कौन है, कौन बादशाह का वादा। एक राजा बादशाह कौन है, कौन बादशाह का वादा। जय राजा राबिया होगा, ओ बादशाह जलाना। रब खुदावन के बादशाह है, ओ ये राजा बादशाह है। ऊँचे करो सिर दरवाजे, ऊँचे हो सब तारो। ऊँचे करो सिर दरवाजे, ऊँचे हो सब तारो। चाँद राजा बादशाह आवे, सिर सब ऊँचे करो। रब खुदावन के बादशाह है, ओ ये राजा बादशाह है। ओ ये राजा बादशाह है, ओ ये राजा बादशाह है। आमीन। Praise God. खुदावन हम लोगों में से सब हम लोग इस बात पे ईमान रखते हैं कि खुदावंद का कलाम कहता है तुम खामोश होगे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। आमीन। खुदावंद का शुक्र करते हैं, बेशक हमारी आवाजें बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन हम इस बात पे खुदावंद का शुक्र करते हैं कि खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं हम लोग दिल की अथाह गहराइयों से प्यारे यीशु जी कि तूने हमें चुना, तूने हमें हिम्मत बख्शी प्यारे खुदावंद। तेरा फतह का झंडा यहाँ पे लहराया गया प्यारे खुदावंद, तेरा नाम जलाल पाया प्यारे खुदावंद।
हम जैसे हकीर और नाचीज लोगों की वजह से प्यारे खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं प्यारे खुदावंद जी। ए प्यारे खुदावंद हम इसी तरह प्यारे खुदावंद इस छोटी सी जमात प्यारे खुदावंद हम ईमान रखते हैं कि हम 2 और 2 मिलके 4 बन रहे हैं प्यारे खुदावंद। जब Yes, 4 और 4 मिलके 8 बनेंगे प्यारे खुदावंद और 8 से हम 16 होंगे तो प्यारे खुदावंद तेरा नाम और जलाल पाएगा आमीन। प्यारे खुदावंद। Thank ऐ you, प्यारे खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें Thank you, Jesus. इस सरजमीन पे जिंदों की सरजमीन पे जिंदा रखा प्यारे Hallelujah. खुदावंद। और आज Thank you, हम तेरी Jesus. बारगाह में हैं प्यारे खुदावंद। बेशक, आज हम प्यारे खुदावंद इस दुआ में प्यारे खुदावंद खास कर उन लोगों को याद रखते हैं करते हैं प्यारे खुदावंद जो इस वक्त अपने अपने घरों में है प्यारे खुदावंद। ऐ प्यारे खुदावंद तूने उनके दिल को छू प्यारे खुदावंद उनके दिलों को मोम कर प्यारे खुदावंद ताकि तेरी बारगाहें खाली ना रहे प्यारे खुदावंद। तेरी बारगाहें तेरे घर भर जाए तेरे लोगों से प्यारे खुदावंद। ऐ प्यारे खुदावंद उनके दिलों को प्यारे खुदावंद जी अपने लिए नरम कर प्यारे खुदावंद। ऐ प्यारे खुदावंद उनके दिलों पे जो शैतान के चुंगल छाए हुए हैं प्यारे खुदावंद जो उन्हें रोकते हैं कि तेरे घर में ना जाएं जो प्यारे खुदावंद जी अपने कामों के चुंगल में फंसे हुए हैं प्यारे खुदावंद तो उनके लिए राहों को हमवार कर प्यारे खुदावंद उनके दिलों को मोम कर प्यारे खुदावंद ताकि वो तेरी बारगाह में आए प्यारे खुदावंद तो तेरे पाक सब्बत को सब्बत का दिन मान के पाक रखें प्यारे खुदावंद क्योंकि तू अपने कलाम में फरमाता है कि जो सब्बत को पाक रखेगा तो उसके रोटी पानी पे बरकत देगा तो उसको बीमारियों के बिस्तरों से उठा लेगा प्यारे खुदावंद। ऐ प्यारे खुदावंद अपनी कलीसिया को तेरे लहू में कवर करते हैं प्यारे खुदावंद और तेरी गहराई को इन पे मांगती हूं प्यारे खुदावंद तेरा नाम जलाल पाए आसमानी बाप प्यारे खुदावंद और तेरा रहम हमारे लोगों पे हो प्यारे खुदावंद हम लोगों पे तेरा रहम हो प्यारे खुदावंद तमाम बीमारों को तू अपने रहम में याद रख प्यारे खुदावंद एक एक जान को छू प्यारे खुदावंद और उनकी बीमारियों के बिस्तरों को उठा दे प्यारे खुदावंद ताकि प्यारे खुदावंद वो से तंदुरुस्ती से चल फिर के तेरे यीशु नाम के नारे लगाने वाले बने प्यारे खुदावंद। इन सारी प्यारे खुदावंद जिसमें मैं ब्लेसिंग को तेरे लहू में कवर करती हूं प्यारे खुदावंद उसके थ्रोट के सारे प्रॉब्लम को तेरे बेटे यीशु नाम में कैंसिल करती हूं प्यारे खुदावंद। जैकनी को तेरे लहू में कवर करती हूं प्यारे खुदावंद उसके गले के सारे इन्फेक्शन को तेरे बेटे यीशु नाम में कैंसिल करते हैं प्यारे खुदावंद। अपनी यूथ को तेरे लहू में कवर करते हैं प्यारे खुदावंद तेरे पाक फरिश्तों का पहरा लगाती हूं प्यारे खुदावंद आज तू इनके हाथों को छू प्यारे यीशु जी तेरा अबर इन पे छाए प्यारे खुदावंद इनके अंदर से ये छाए पड़ना प्यारे खुदावंद वो खत्म हो प्यारे खुदावंद और तेरे नाम के नारे लगा के प्यारे खुदावंद इस ह्यूस्टन में ऐसी यूथ उभरे प्यारे खुदावंद के तेरे नाम को जला देने का सबब बनेंगे लोग प्यारे खुदावंद। ऐ प्यारे खुदावंद इनकी जवानियों पे अपना रहम रखना प्यारे खुदावंद कोई इनकी जवानियों की हकारत ना करे प्यारे खुदावंद इनके खिलाफ उठने वाले इनके खिलाफ बोलने वाले प्यारे खुदावंद जी तेरे बेटे यीशु नासरी के नाम से वो लब खामोश किए जाएं प्यारे खुदावंद और प्यारे खुदावंद तेरा नाम जलाल पाए आसमानी बाप प्यारे खुदावंद आज हम भट जाएं प्यारे खुदावंद और तू हम लोगों में भट जा प्यारे खुदावंद हम सब एक एक अपने आप को सरेंडर करते हैं तेरे सामने प्यारे खुदावंद तेरा फजल मांगते हैं प्यारे खुदावंद हम नाचीज हैं हम फकीर हैं प्यारे खुदावंद हमें इतनी हिम्मत कहां हमें इतनी जरूरत कहां प्यारे खुदावंद कि तेरे पास नज़बा के आगे आके खड़े भी हो सके प्यारे खुदावंद लेकिन ये तेरा रहम है प्यारे खुदावंद तूने हमें चुना प्यारे यीशु जी तूने हमें प्यारे खुदावंद उठा खड़ा किया प्यारे खुदावंद इससे पहले कि हम लोग प्यारे खुदावंद जी गुनाहों की दलदल में धंसे चले जाते तूने अपने रहम के वसीले से हमें उठा खड़ा किया प्यारे खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं भाई सुलेमान के लिए प्यारे खुदावंद जब पास्टर सुलेमान यहाँ पे इस वक्त मौजूद हैं तूने उनको सेहत तंदुरुस्ती वाला बिस्तर अता किया प्यारे खुदावंद आमीन थैंक यू यीशु मसीह के नाम को जलाल मिलता है प्यारे खुदावंद क्योंकि तेरे रहम के वसीले से ये सब कुछ मुमकिन हुआ प्यारे खुदावंद। ऐ प्यारे खुदावंद अपने पास्टर जॉर्ज वहीद को तेरे लहू में कवर करती हूं प्यारे खुदावंद और तेरा रहम मांगती हूं तेरे बंदे पे प्यारे खुदावंद जब वो कलाम करे प्यारे खुदावंद तो उनके कलाम के वसीले से प्यारे खुदावंद जी हमारे लिए प्यारे खुदावंद 100 गुना फल हो प्यारे खुदावंद हमारी जिंदगी प्यारे खुदावंद तेरे कौल के मुताबिक तब्दील हो प्यारे खुदावंद तू हमारे दिल जो प्यारे खुदावंद जी गुनाहों की दलदल बने होते हैं प्यारे खुदावंद हमारे दिल जो प्यारे खुदावंद ये सख्त हो चुके होते हैं प्यारे खुदावंद तूने नरम कर प्यारे खुदावंद ताकि तेरे बोल जब हमारे इस दिल पे गिरे प्यारे खुदावंद तो हम लोग प्यारे खुदावंद 100 गुना फल लाने वाले बने प्यारे खुदावंद। ऐ प्यारे खुदावंद एक मरतबा फिर प्यारे खुदावंद इस चर्च की सारी चेयर्स पे तेरे लहू की बाढ़ को लगाती प्यारे खुदावंद आने वाले दिनों में प्यारे खुदावंद हम ईमान रखते हैं इस बात पे हम इस बात पे मुत्फिक होते हैं क्योंकि तेरे कलाम में लिखा है जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होकर एक बात पे मुत्फिक होंगे वो उनके लिए हो जाएगी। ऐ मेरे खुदावंद हम इस बात पे मुत्फिक होते हैं कि ये चर्च तेरा चर्च कहलाएगा ये बारगाह तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से कहलाएगी प्यारे खुदावंद और यहां पे आने वाला हर जान
हर रूह तेरे खुदावन तेरे नाम से खरीदा जाएगा Yes, खुदावन मेरे खुदावन देख एक चर्च की मेरे खुदावन जिस चेयर को मैं तेरे लहू में मसा करती हूँ मेरे खुदावन कोई भी मेरे खुदावन चेयर इस वक्त खाली ना रहे मेरे खुदावन बल्कि तेरे पाक विश्व का पहरा यहाँ पे हो तेरे खुदावन तेरे लोग जाने के ये मंडली तेरी है तेरे खुदावन इसमें हमारा कुछ नहीं तेरे खुदावन लेकिन मेरे खुदावन तू सब कुछ कर सकता है मेरे खुदावन तू सब कुछ कर सकता है मेरे यीशु जी तू हमारे लिए कर तेरे खुदावन उठ खड़ा हो तेरे खुदावन तू हमें शर्मिंदा ना होने दे बल्कि अपने जोर से अपनी कुव्वत से मेरे खुदावन तू लोगों को यहाँ पे लेके आ मेरे खुदावन जो भी मांगती हूँ मेरे खुदावन तेरी कुदरत वाले नाम में मांगती और पा लेती हूँ आमीन। हम ज़बूर नंबर 51 के सिर्फ 2-3 वर्स खाएंगे फजल नालेरा बख्श गुनाह सब मेरे फजल नालेरा बख्श गुनाह सब मेरे मांगो फजल रहम कर तू है उते मेरे मांगो फजल रहम कर तू है उते मेरे फजल नालेरा चंगी तरह दो दे मेरी कर सफाई चंगी तरह दो दे मेरी कर सफाई मैनू कर तू पासा बते सबुरे आई मैनू कर तू पासा बते सबुरे आई फजल नालेरा मेरी पैदा होया वेखो विच बुराई मैं भी पैदा होया वेखो विच बुराई मैनू विच गुनाह दे जमिया मेरी माई मैनू विच गुनाह दे जमिया मेरी माई फजल नालेरा फजल नालेरा आमीन। प्रस्तिश के इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए दरखास्त है संडे स्कूल के बच्चों से कि वो आकर प्रस्तिश में हमारी रहनुमाई करें। शुक्रिया हो बधाई ताली बजाएंगे बच्चों का स्वागत करो शुक्रिया हो बधाई शुक्रिया हो बधाई करो शुक्रिया हो बधाई शुक्र करो तुसियों दा जेड़ा है होदा माना होदा शुक्र करो
आमीन। अजीजों, अब हम इबादत के उस हिस्से में पहुंच चुके हैं जहां पे हम खुदा का दिया हुआ कलाम अपने पास्टर जॉर्ज वहीद की जुबानी सुनेंगे। आइए अपने आप को खुदा के कलाम के लिए तैयार करें। हालेलुया। कितना खूबसूरत बच्चे ये जो गीत ऐसे गा रहे थे। हम जो बड़े हैं हमें कुछ याद आता है जब ये बच्चे आगे आगे गीत गाते हैं। किसी तरह हमारे वालिदैन भी हमें चर्च लेके जाते थे, कन्वेंशंस में, क्रूसेड में, और हम इसी तरह गीत गाते थे। फर्क सिर्फ इतना है कि वहां सिर्फ चर्च के लोग हमें देखते थे, राइट। लेकिन आज इन बच्चों को पूरी दुनिया में जहां भी इस मीडिया के जरिए आज की जो इबादत है उसमें लोग शामिल हैं, वो भी देखते हैं। तो खुदा उन्हें बरकत दे। बेटी के बाद बड़ी अच्छी है, और खुदा ने चाहा तो आंटी जी शी विल बी गॉस्पेल सिंगर। खुदा उन्हें इस्तेमाल करेगा जरूर। आए हम अपने सरों को झुकाते हैं और खुदा उनके कलाम की तरफ जो आज हमारा सबक है उसकी तरफ हम बढ़े और खुदा से हदायत और रहनुमाई जो है उससे मांगे। खुदा कादर आसमान और जमीन को पैदा करने वाले हमारे खुदावन, हम तेरा शुक्र करते हैं आज इस वक्त के लिए जो तूने हमें दिया कि खुदावन हम तेरे चरणों में आए, तेरे कलाम में से मिलकर सीखें। ऐ बाप, इस वक्त जितने भी तेरे लोग इस छत के नीचे इस तेरे घर में जमा हैं ताकि तेरे कलाम को सुने, वो और खुदावंदा जो इस वक्त दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में खुदावंदा हमें इस टेक्नोलॉजी के जरिए लाइव देखते हैं, इस चर्च में शामिल हैं, खुदावंदा काश हम सब मिलकर आज की इस कलाम की वसीला से बहुत ज्यादा बरकत पाएं, यीशु के नाम में आमीन। आपको पता है कि इन दिनों हम तीतस के नाम जो खत खुदावंद के रसूल पालूस ने लिखा उसमें से सीख रहे हैं, और इस सिलसिले का आज ये आखिरी पैगाम है, ये मैसेज है। इस किताब के सिर्फ 3 अबवाब हैं और हमने जो 3 मैसेज हैं वो सुने हैं। तो बेसिकली इसके 4 जो मैसेजेस हैं या पैगाम जो हैं वो हैं। मैं जरा रिकैप करना चाहता हूँ और उसके बाद फिर हम खुदावंद के कलाम में आगे बढ़ेंगे। जो पहला मैसेज था वो जुलाई 17 को शेयर किया गया, और इस खत का जो इंट्रोडक्शन है वो उसमें उस पर बात की गई, और तीतस का मसीह को कबूल करना या मसीहत में आना पालूस रसूल के हाथों, उस पर हमने बात की। और इसके साथ साथ ये जो पहला मैसेज है, ये पहली जो 4 आयत हैं इस खत के पहले बाब की, उन पर था, और हमने तफसील से इस पर बात की थी, और खुसूसन इस बात पर कि किस तरह रसूल जो है वो अपना तारुफ शुरू में करवाता है। और मैंने बताया था कि ज़माना कदीम में किस तरह खत लिखते वक्त जो लोग थे पहले अपना इंट्रोडक्शन में तारुफ कराते थे। आजकल तो हम आखिर में लिखते हैं दुआ गो या जो भी अल्फाज होते हैं। और उसके बाद फिर हमने जो दूसरा सबक है वो जुलाई 25 को, जुलाई 25 को हमने ये मैसेज शेयर किया था, और हमने 5वीं आयत से 16वीं आयत तक सीखा था, पहले बाब की 5वीं आयत से 16वीं आयत तक। और उसमें जो रसूल है वो तीतुस को बताता है कि बेसिकली कि उसको यह टेम्परेरी रखा गया था यहाँ पर, और उसको ये जो गाइडलाइंस हैं वो दी गई कि किस तरह वो शहर बा शहर जो एल्डर्स या डीकन या चर्च लीडर हैं उन्हें कायम करे, और उसके लिए क्राइटेरिया क्या है, उनकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो वो सारी उस पर बात थी। और फिर इसके बाद जो तीसरा पैगाम या मैसेज था वो इसी खत के दूसरे बाब की में से था, और पहली आयत से 15 आयत तक, ये 15 आयत है इसमें, तो उस पर हमने बात की थी। और ये जो तीसरा मैसेज था इसका लुबाब भी यही था कि जो लीडरशिप है
وہ کس طرح کی ہونی چاہیے. اور خاص کر اس پر جس بات کو ٹچ کیا تھا وہ یہ تھا کہ تیتس کو بتایا گیا تھا کہ جو چرچ میں مختلف ایج گروپ ہیں ان کو کس طرح اس نے سکھانا ہے یا ان سے بات کرنی ہے. جو بزرگ ہیں مرد, جو بزرگ عورتیں ہیں, جو جوان عورتیں ہیں, جو جوان مرد ہیں, اس کے بارے میں بتایا گیا. اور اس خط کو پیسٹرل اپیسل بھی کہتے ہیں کیونکہ اس میں ساری جو تفصیل ہے وہ دی گئی ہے کہ ایک خادم جو ہے اس کی ذمہ داری میں کیا ہے, اس کو کس طرح ہینڈل کیا کرنا چاہیے چیزوں کو اور سچویشن کو. تو اس کے بارے میں تفصیل سے ہم نے بات کی تھی. آج جو اسی کڑی کا آخری پیغام ہے اس خط میں وہ 3 باب کی پہلی آیت سے 15ویں آیت تک ہے. گو ہم نے 10 آیات کی تلاوت کی لیکن ہم باب کے آخر تک جو ہے اس کلام میں سے مل کر سیکھیں گے. اور میں آپ کو آج ایک چھوٹی سی ذمہ داری بھی دینا چاہتا ہوں اور میری درخواست ہے کہ اگر آپ کے پاس وقت ہو تو ضرور اس پر غور کریں. یہ آپ کو پتہ ہے جو کروسیڈز ہوتے ہیں یا کرسچن سیمینارز یا کنونشنز جو ہوتی ہیں, خاص کر کنونشن اور کروسیڈ, وہاں پر خوشخبری کا جو پیغام ہے اس کو شیئر کیا جاتا ہے. وہاں پر توبہ کی منادی ہوتی ہے, خداوند کو پریزنٹ کیا جاتا ہے. اور یہ بہت بڑا مجمع جس میں کوائر ہوتی ہے اور لوگ جو ہیں مختلف بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتے ہیں, وہ وہاں پر ہوتے ہیں اور مسیح کو پریزنٹ کیا جاتا ہے. یہ خوشخبری کا پیغام جو ہے یہ سنایا جاتا ہے تاکہ لوگ کیا کریں, توبہ کریں. وہ جو ابھی تک یسوع سے دور ہیں, یسوع سے ناواقف ہیں, وہ یسوع کے پاس ہیں. کروسیڈز یہ ہوتے ہیں, کالنگ ہوتی ہے, لوگ سامنے آلٹر پہ آتے ہیں, توبہ کرتے ہیں. اور اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے, پھر وہی لوگ جو خداوند کو قبول کرتے ہیں پھر وہ اپنے اپنے چرچ میں جہاں سے ان کا تعلق ہوتا ہے پھر اس چرچ میں روحانی جو گروتھ ہے اس کا ان کا پروسیس شروع ہو جاتا ہے. تو جو چرچ ہوتا ہے میرے عزیزو یہ روحانی گروتھ کے لیے ہے, جہاں ہم ایک دوسرے کے ساتھ اس ہفتہ وار یا ہفتے میں 2 دفعہ یا 3 دفعہ جیسے بھی کسی چرچ کا سیٹ اپ ہے, جب وہ اکٹھے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے روحانی گروتھ ہو. جو کروسیڈ ہے وہاں پر زیادہ تر کالنگ ہوتی ہے, وہاں میسج ہوتا ہے, لیکن زیادہ تر کروسیڈ کا مطلب یہی ہوتا ہے. اور پھر لوگ چرچ میں آ کر روحانی ترقی کے لیے سیکھتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں. چرچ جو ہے اس کو مدر بھی کہتے ہیں, اس لیے کہ جس طرح ماں اپنے بچوں کو اپنے گفٹ لے کر بیٹھ کر انہیں سکھاتی ہے, ان کی تعلیم و تربیت کرتی ہے, ان کو سارا بتایا جاتا ہے, دنیاوی جو دنیا کے معاملات ان کے سلسلے میں بھی روحانی طور پر, اسی طرح جو چرچ ہے اس طرح کا مدر جہاں ہم آ کر اپنی جو روحانی گروتھ ہے اس میں بھی آگے بڑھتے ہیں اور آپس کے ریلیشن شپ میں اس میں بھی آگے بڑھتے ہیں. تو ایک بات یاد رکھیں, اب جو بات میں کہنے والا تھا وہ یہ تھی کہ ان پیغامات کا فائدہ, روحانی فائدہ تب ہی ہے جب ہم انہیں سنیں اور ان پر غور کریں. مجھے پتا ہے ہم یہاں پر جمع ہوتے ہیں 1 2 3 گھنٹے کے لیے اور پھر ہماری زندگی مصروف ہو جاتی ہے, لیکن خداوند کا شکر ہے آج اس ٹیکنالوجی کے لیے. جب ہم جوان ہونے تھے جو میری ایج کے ہیں تب یہ ریکارڈنگ کی ٹیکنالوجی نہیں تھی, تب جو آپ نے سنا ہے اور اسی لیے ہمیں آج تک یاد ہے کہ ہم لکھ لیتے تھے, نوٹس بناتے تھے. کیوں بھائی صاحب اس طرح ہی ہوتا تھا شکیل بھائی, ہم اور پھر آپس میں گفتگو کرتے تھے اور پھر پوچھتے تھے. اس طرح ہم نے سیکھا. آج ہمارے پاس یہ میڈیا ہے, لائیو بھی ہے, اس کے علاوہ آپ اسے ریکارڈ کرتے ہیں, یوٹیوب پہ دیکھتے ہیں, فیس بک پہ دیکھتے ہیں, دوسرے سوشل پلیٹ فارمز ہیں. اس کا مطلب یہی ہے کہ واپس جا کر اس کو سنیں. جو بھی خدا کے خادم آپ کے ساتھ میسج شیئر کرتے ہیں, جہاں بھی آپ کا چرچ ہے, جہاں بھی آپ ہیں, سنیں. تیتس کے میں آپ کو یہ کہوں گا کہ اس کے جتنے بھی پچھلے 3 میسج ہیں واپس جا کر آپ انہیں ضرور سنیں. جب آپ ان سب کو ترتیب بار سنیں گے تو پھر اور زیادہ انڈرسٹینڈنگ. اس طرح غلطیوں کے خط پر ہم نے بات کی تھی, اس کے 10 میسج ہیں ان کو سنیں. اس کے علاوہ اور اس کے ساتھ ساتھ جب آپ اس کو سنتے ہیں, اور ہمارے پاس جو زیادہ تر ٹائم یہاں اس ملک میں یا آج کی سوسائٹی میں بزی ٹائم جو ہے اس میں ٹائم نکالنا مجھے پتہ ذرا مشکل ہے, لیکن بہترین ٹائم تو جب آپ اپنی گاڑی میں ہوتے ہیں, اس گاڑی میں ذرا ٹیکسٹ بند کر دیں دوستوں کے, ٹھیک ہے, اور فیس بک بند کر کے. ایک تو ویسے بھی سیف ڈرائیونگ ہونی چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ان میسج کو لگا کر آپ سن سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ اپنا سفر بھی طے کر سکتے ہیں. تو میں نے کہا یہ بھی آج آپ بات جو ہے وہ کی جائے. آئے ہم خداوند کے کلام کی طرف بڑھتے ہیں.
खुदावन के कलाम में पौलुस रसूल, जैसा कि मैंने पहले अर्ज की, तीतुस को उसने ये जो जगह है क्रीते यहाँ पर रखा, ये टेम्परेरी था आर्जी तौर पर, लेकिन काम मुश्किल था, हमने इस पर बात की थी। इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। तो इसलिए खुदावन ने तीतुस को, पौलुस को कहा कि उसको वहां पर रहने दे ताकि उसकी तरतीब हो। ये चर्च का सेटअप है जो वो तरतीब देता है। और फिर अब हम जब तीसरे चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पर जो पहली आयत है, यहाँ लिखा हुआ है, उनको याद दिला। किनको याद दिला? इस शहर के लोगों को। ये खासकर इस शहर के बारे में बात हो रही है, क्योंकि अगर आप पढ़ें तो इसके जो पहला बाप है उसकी 12वीं आयत में यूं लिखा हुआ है, क्योंकि बहुत से लोग सरकश, बेहुदा गो और दगाबाज है। और 12वीं आयत में लिखा है, उन्हीं में से एक शख्स ने कहा जो खास उनका नबी था कि कीर्ति हमेशा झूठे मूजी जानवर हदी खाओ होते हैं। इनकी ये बातें थी जो मशहूर थी, इस पर हमने बात की थी। तो इनको वो कह रहा है, खास कर तीतुस को रसूल के, इनको याद दिलाना कि हाकिमों और इख्तियार वालों के ताबे रहें और उनका हुक्म माने और हर एक नेक काम के लिए मुस्तैद रहें। अगर आप तीमुथियुस के खत के दूसरे बाब को खोलें और उसकी पहली और जो तीन याद जो है, पहली, दूसरी, तीसरी, वहां पर पता क्या लिखा है? यहां पर लिखा है कि उन्हें याद दिला। लेकिन तीमुथियुस के खत के पहले तीमुथियुस के खत के दूसरे बाब में यूं लिखा है, बस मैं सबसे ये नसीहत करता हूं कि मुनाजातें और दुआएं और इल्तिजाएं और शुक्रगुजारियां सब आदमियों के लिए की जाएं। और आगे, बादशाहों और सब बड़े मर्तबा वालों के वास्ते, इसलिए कि हम कमाल, दीनदारी और संजीदगी से अमन और आराम की जिंदगी गुजारें। ये हमारे मुनज्जी खुदा के नजदीक उम्दा और पसंदीदा है। यहां पर दुआ करने के लिए कहा गया है उनके लिए। लेकिन जब हम यहां आते हैं इस तीसरे चैप्टर में तीतुस के खत में, तो यहां पर लिखा है कि उनको याद दिला। जब हम ओरिजिनल टेक्स्ट जो है उसमें जाते हैं ग्रीक में, तो जो याद दिलाना या रिमाइंडर इसे इंग्लिश में कहते हैं, ये सीगा हाजिर में लिखा गया है, प्रेजेंस टेंस में है ये। इसलिए जब ये कहते हैं कि रिमाइंड हिम, उसको रिमाइंड करवाएं, तो वहां पर ये नहीं मतलब जो बात हो चुकी है, गुजर गई, जो वो याद दिलाएं, बल्कि जो हो रहा है उसके बारे में भी है कि इनको याद दिलाता रहे। और याद क्या दिलाना है? कि जो हाकिम या इख्तियार वाले, अब यहां पर दोनों तरह की जो अथॉरिटीज हैं उनके बारे में कहा गया है। जो सिविल अथॉरिटीज है, जो भी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, वो उनके ताबे रहें, उनके इख्तियार में जो रूल्स और रेगुलेशंस और लॉ हैं उनको वो उनके पाबंद रहें। इसके साथ साथ जो इख्तियार वाले हैं, इसमें जो चर्च लीडरशिप है उसकी भी बात की गई है। लेकिन शर्त यह है कि चर्च लीडरशिप ऑनेस्ट और ट्रू हो, खुदावन की डॉक्ट्रिन को समझती हो, कलाम की, और उसकी जो की टीचिंग है वो बाइबल की वो सेंटर बेस होनी चाहिए। तो फिर ये उन पर भी लागू हो जाता है कि उनके भी ताबे यहां पर नहीं, बल्कि लिखा है, इसका मतलब यह है कि उनकी बात को गौर किया जाए और उसको माना जाए। और जो इख्तियार वाले हैं उनके बारे में जो भी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, जो लॉज हैं, उनको हम माने। और इसकी वजह ये थी कि ये जो लोग थे, जिस तरह के पहले कहा गया, इनको एलिमेंट्री टीचिंग की जरूरत थी। जैसे एलिमेंट्री होती है, प्राइमरी, फिर मैट्रिक, फिर आगे तो दर्जे बढ़ते जाते। लेकिन यहाँ पर तीमुथियुस के खत में वो लिखता है उनके लिए दुआ करो, क्योंकि वो इफिसस की कलीसिया में था, तो इसलिए उसको वहां के बारे में, उनका जो लेवल था उसके बारे में कहा गया। लेकिन यहाँ पर तीतुस को इन लोगों के बारे में इसलिए कहा गया कि इनके बारे में ये बातें मशहूर थी कि ये झूठे हैं और जो फॉल्स टीचिंग है वो बहुत ज्यादा है, और उनकी जो रूहानी एजुकेशन है वो उसका लेवल एलिमेंट्री का था। इसलिए यहाँ पर उन्हें याद दिलाने के लिए दोबारा कहता है कि उनको याद दिला के उन्होंने ये करना है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। चर्च को हमेशा ये तलकीन की जाती है कि चर्च जो है, जो भी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, जहां भी है, चर्च उसको माने, जो भी सिविल लॉज है उनकी बात यहाँ पे होती है। तो यहाँ पर पौलुस उसको यही कहता है। मेरे ख्याल में एक अच्छा शहरी होने के नाते एक मसीही का ये फर्ज बनता है कि वो जो गवर्नमेंट के रूल्स और रेगुलेशन है उनके पाबंद रहे। और जैसा कि मैंने कहा, इसका ताल्लुक किसी भी तरह क्रिश्चियन डॉक्ट्रिन से नहीं है, क्योंकि जब बाइबल की बात आएगी, वी हैव ऑल राइट टू स्टैंड फॉर बाइबल, क्योंकि ये खुदा का हुक्म है। ठीक है। अब
जो पहली आयत का जो आखिरी हिस्सा है वहां लिखा है किसी की बदगोई ना करें, तकरारी ना हो, बल्कि नरम मिजाज हो, और दूसरी आयत और सब आदमियों के साथ कमाल हलीमी से पेश आए। यहां पर लीडरशिप की बात आ गई है कि जो चर्च के लीडर हैं उनकी जो खसूसियात है वो क्या होनी चाहिए। उनको नरम मिजाज होना चाहिए, क्योंकि अच्छे काम जो है मेरे अजीजों वो मसीही जिंदगी में दूसरों की मदद करने और दूसरों पर रहम और तरस खाना, इसकी जो तलकीन और जो तालीम है ये आपकी या मेरी तौबा से स्टार्ट नहीं होती, बल्कि ये बहुत पहले खुदा ने इंसान के अंदर रखी और नमूने के तौर पर हमें बताया है, और अभी हम इसके बारे में बात करेंगे। जब आप आयत 2 में चलते हैं तो यहां लिखा है तीसरी आयत, तो पहला लफ्ज है क्योंकि हम भी पहले नादान, और फिर आगे लिखा नाफरमान, फरेब खाने वाले और रंग बिरंग की ख्वाहिशों, रियाश व इशरत के बंदे थे। हम भी पहले, तो यहां पर रसूल जब ये बात करता है कि हम भी पहले, तो नादान मतलब हम ना वाकिफ थे, हमें मसीह का पता नहीं था, हम जो हकीकी तालीम है उसके बारे में ना वाकिफ थे। वो यहां पर वो जो यहूदी माइल मसीही थे उनको भी इस सिलसिले में बात करता है कि तुम्हें जो शरीयत की बातें बताएंगी, तुम्हें जो बपतिस्मा और अमाल की बातें बताएंगी तुमने वो सुनी, लेकिन हम उस वक्त तक जो असल खुशखबरी है उससे नावाकिफ थे, नादान थे। या नादान का लफ्ज़ नावाकिफ होना है, नाफरमान, गुनाह में घिरे हुए थे, और फरेब खाने वाले हक से नावाकिफ थे। और मतलब इसका ये कि शरीयत की जो बातें हमें बताई जाती थी हम उन पर ध्यान देते थे, क्योंकि हमें जो असल खुशखबरी है उसके बारे में मालूम नहीं था। और वो तीतुस को कहता है कि इन लोगों को याद दिला कि ये कहां थे और अब कहां है, रूहानी तौर पर पहले कहां थे और अब कहां है। अब इन्होंने मसीह को कबूल कर लिया, मसीह में आ गए, इनको अब याद रखना चाहिए कि इनका जो रिलेशन है वो मसीह के साथ मजबूत होना चाहिए, रोज बरोज उसमें रूहानी तरक्की जो है वो होनी चाहिए, उसमें वो आगे बढ़े। ये यहाँ पर वो बात करता है जब ये कहता है कि क्योंकि हम भी पहले नादान थे। रिमाइंड कराने का मतलब ये है क्योंकि हम नादान थे और सारी बातें मेरे जीवन जो यहाँ लिखी गई हैं उनसे पहले क्या हुआ, ये उसका रिएक्शन है। खुदावन की शुक्रगुजारी, नंबर 1, खुदावन की शुक्रगुजारी आजिज़ी के साथ शुरू होती है, और अब हम उसको प्रेजेंट करते हैं दूसरे लोगों के साथ। नंबर 2, हलीमी और फरोतनी उसको कबूल करने के बाद हमें आती है, और वही हलीमी और फरोतनी फिर हम जो दूसरे हमारे लोग हैं जिनके साथ हम इंटरेक्ट होते हैं उनके साथ फिर हम ये हलीमी और फरोतनी जो है उन्हें दिखाते हैं। नंबर 3, दूसरों के साथ मोहब्बत से पेश आए। ये कहा कि मोहब्बत से पेश आए, लेकिन इससे पहले खुदा हमसे मोहब्बत से पेश आया कि उसने अपनी जो मोहब्बत है मतलब अपना बेटा जो है वो हमें दिया, और सबसे बढ़कर ईमान, क्योंकि पॉइंट ए से बी तक की जो सारी चीजें हैं पॉइंट ए से बी तक जाने के लिए जिस वेसल की जरूरत है वो फेथ है। इट्स अ फेथ दैट हेल्प्स अस टू प्रोड्यूस। ये हमारा ईमान है जो हमारी मदद करता है, तो ये प्रोड्यूस होता है। ठीक है, और आयत 4 से 8 तक इसे मैं इकट्ठा इस पे बात करूंगा। बाइबल आपने खोली हुई देखें, यहाँ लिखा हुआ है, मगर जब हमारे मुनज्जी खुदा की मेहरबानी और इंसान के साथ उसकी उल्फत जाहिर हुई तो उसने हमको नजात दी, मगर रास्तबाजी के कामों के शौक से नहीं। अब यहाँ पर रसूल एक खास बात दर्ज करता है कि वो कभी भी ये ना भूलें, क्योंकि उनका जो बैकग्राउंड है जैसे मैंने बताया, कुछ गैर कौम से आए थे, कुछ यहूदियों से आए थे, इसलिए उन्हें बताया गया कि तुम्हारे ईमान की वजह से नहीं, मेरे ईमान की वजह से नहीं, बल्कि खुदा के खास फजल से हम बचाए गए हैं। और फिर अक्सर आपने सुना होगा, कई दफा ये मुहावरत कहा जाता है कि यार आपके दिल में इतना रहम क्यों है, तो यार पता नहीं मेरे माँ प्यो ने इंची मेनू परवान चढ़ा है, मेरे माँ बाप बड़े रहम दिल थे। अच्छा, तो फिर वो माँ बाप कैसे इतने रहम दिल और इतने फरोतन? यार मेरे वालिद बताते हैं कि मेरे दादा और दादी भी ऐसे थे, परदादा भी ऐसे थे। अगर ये सिलसिला चलता जाए तो कहां जाएगा? आदम तक जाएगा। और फिर क्या वहां पे देखते हैं, वहां आदम ने जब गुनाह किया तो क्या हुआ?
खुदा ने उसे वापस लाने का प्लान बनाया। तो ये जो हलीमी और फरोजनी है, ये मेरे माँ बाप ने मुझे बेशक सिखाई है, लेकिन उनके अंदर कहां से आई, मेरे दादा के अंदर कहां से आई? ये खुदावन के प्लान के मुताबिक उसने उन पर रहम किया, अय्याम किया। तो ये हम सिलसिला जो है सीना बसीना, नस्ल दर नस्ल आगे ट्रांसफर करते हैं। ये हलीमी और फरोजनी मैंने नहीं शुरू की, ना मेरे बाप ने, ना मेरे दादा ने, नहीं, खुदा ने जब पहले इंसान ने गुनाह किया तो उसको रहम आया, तरस आया, वो फरोतन हुआ और उसने कहा नहीं, मुझे आदम को वापस लाना है। We have to go back to the beginning. कभी कभी हम सोचते हैं ये शायद हमारे डीएनए में, नेचर में है कि मेरे खानदान से, हाँ कुछ ऐसी चीजें हैं, लेकिन जब ये चीजें आती हैं जिनका रूहानियत से ताल्लुक है, खुदा ने हमारे सोचने करने से पहले ही उसका इंतजाम कर दिया था। उसने पहले ही इंतजाम कर दिया था कि अपने बेटे को वो भेजेगा। लिहाजा ये जो इंतजाम है हमारे अंदर, जो रहम और दर्द और दूसरों के लिए जो केयर है, ये खुदा का पाक रूह आपके अंदर आता है। याद रखें, अगर यही बात होती तो ऑल्टर कॉल जो है उससे निजात ना मिलती, ना उसे निजात मिलती है, बपतिस्मा लेने से निजात नहीं मिलती, संडे को सिर्फ चर्च आने से निजात नहीं मिलती, बाइबल पढ़ने से निजात नहीं मिलती। ये सारी अच्छी चीजें हैं, लेकिन जो निजात है वो यीशु पर ईमान लाने से, फजल से हमें मिलती है। ये वो काम है निजात के बाद जो हमारी जिंदगी से, वो फ्रूट है जो हमारी जिंदगी से नजर आने चाहिए मेरे अजीजों। अगर अमाल से ही निजात मिलती तो पता क्या, फिर बपतिस्मा would have been a manufacturing warehouse जिससे सारे अच्छे काम निकलते, चिंता जिक्र है, लेकिन ऐसा नहीं है। बपतिस्मा या तौबा बाइबल पढ़ना ये कोई वेयर हाउस नहीं है जहां से ये सारी अच्छी चीजें निकलती है, नहीं, सारी अच्छी चीजों का मंबा उसका फजल और रहम है जो वो यीशु की मार्फत हमसे करता है। लेकिन ये सारी चीजें अच्छी हैं क्योंकि ये एक मसीह का कैरेक्टर है मेरे से, और इसकी एक खास वजह है। जब हम आगे चले तो इसकी समझ आएगी। यहां पर लिखा है 5वें जो आयत है उसको अगर आप देखें तो यहां पर उसकी जो आखिरी जो हिस्सा है वहां पर लिखा है, बल्कि अपनी रहमत के मुताबिक नई पैदाइश के गुस्ल और रूह कुस हमें नया बनाने के वसीला से। बहुत सारे लोग थियोलॉजियंस इसको मिक्सअप कर जाते हैं, क्योंकि जब गुस्ल की बात आती है तो वो जो इफ्सियों का खत है उसके 5वें बाब की 26वीं आयत को इससे कभी कभी मिक्सअप कर देते हैं। यहाँ पर यूं लिखा है इफ्सियों के खत के 5वें बाब की 26वीं आयत में, ताकि उसको कलाम के साथ पानी से गुस्ल देकर और साफ करके मुकद्दस बनाए। यहां पर जब तीतस से रसूल बात करा तो ये रूह कुद्स का गुस्ल है, स्पिरिचुअल वॉशिंग है, क्लेंजिंग है। तो कभी भी ये ना समझे कि इसका ताल्लुक किसी भी तरह पानी से है, नहीं। जब इफ्सियों में पौलुस बात करता है तो वो एक और बैकग्राउंड में बात कर रहा है, लेकिन यहां पर रूहानी जो क्लींजिंग है उसकी बात की गई है मेरे से। और फिर एक मसीह थियोलॉजियन है ब्रिस्को, he writes this, गौर से सुने, the theology of Christianity is based on grace. गौर से सुने, the theology of Christianity is based on grace. The ethics of Christianity are based on gratitude. जो हमारी निजात है वो फजल से है, लेकिन जो एथिक, जो इखलाकियात है वो शुक्रगुजारी है उस फजल की मार्फत जो हमें मिलता है, उसका ये बाई प्रोडक्ट है। इसलिए कभी भी जो अच्छे काम हैं उनसे दरगुजर ना करें, जहां मौका मिले जरूर करें, क्योंकि खुदावन जो है वो देखता है। फेथ अलोन की डॉक्ट्रिन से हम वाकिफ है, लेकिन फेथ अलोन की डॉक्ट्रिन जो है वो फेथ अलोन सिर्फ ईमान यीशु पर लाने की बात है, लेकिन फेथ अलोन नहीं है, उसके साथ जो अमाल है वो भी है। आयत 9 में लिखा हुआ है, बल्कि 9वीं आयत से हम 11वीं आयत तक इसको पढ़ते हैं।
9वीं आयत में लिखा, मगर बेवकूफी की हुज्जतों और नस्ब नामों और झगड़ों लड़ाइयों से शरीयत की बाबत हो प्रेज कर। प्रेज करने से मतलब है या हम इसे अवॉइड कर, उनको उनकी तरफ ध्यान ना दे, उनकी तरफ से अपना मुंह मोड़ दे, जब आप ओरिजिनल टेक्स्ट में देखते हैं। और बेवकूफी की बातों, हुज्जती, हम सब जानते हैं कि अक्सर आप देखते हैं हुज्जती अशखास को भी। मैं इसके लिए परफेक्ट जो पंजाबी ट्रांसलेशन है वो है स्टली। दिस आई लव दिस वर्ड, क्योंकि जब आप ये लफ्ज स्टली कहते हैं तो आपको सारी समझ आती। वो शख्स जो हर वक्त कोई मसला खड़ा करना चाहे, वो कनिंग भी कह सकते हैं आप, कोई ऐसा शख्स जो हर वक्त कहीं ना कहीं मसला पैदा करने के, उसका काम ही बस ये होता है। इसी में वो फिर बिदती भी आ जाते हैं। वो बिदती रूहानी जो क्रिश्चियन डॉक्ट्रिन है उसके बारे में यहाँ लिखा हुआ है। लेकिन यही वो लोग होते हैं मेरे अजीजों, जो क्या करते हैं, वो कलीसिया में मुख्तलिफ तरह की तालीम जो है उसे ले आते हैं, और कलीसिया में हमेशा वो कहीं ना कहीं गड़बड़ पैदा करने की कोशिश करते हैं। उनकी गुफ्तगू, उनका जो चाल चलन होता है, वो किसी भी तरह ईमानदारों की जमात में ईमानदारों की रूहानी तरक्की का बायस नहीं होता। और रसूल बड़ी सख्ती से कहता है, कहता उन्हें 1-2 दफा नसीहत कर। जब वो 1-2 की बात करता है, इसका मतलब ये नहीं कि एक दफा मैंने उसे कह दिया, दूसरी दफा कह दिया अब बस नहीं। उसका मतलब यही कहने का है 1-2 से आप 3 दफा भी समझा सकते हैं, लेकिन यू हैव टू क्लोज दैट डोर। कोई भी ऐसा शख्स जो आपकी कलीसिया में, आपके ग्रुप में किसी भी तरह बिदअत लेके आता है, या कलीसिया के अंदर, कलीसिया के मेंबर्स के अंदर इंतशार फैलाता है, लीडर का फर्ज है कि उसको समझाए 1-2 दफा। जो चर्च के बुजुर्ग हैं उनको साथ लेके भी समझाए, और अगर नहीं तो फिर लिखा है कि उससे किनारा कर, अवॉइड कर, उसे प्रेस कर। लेकिन इस किनारा कशी में हम एक बात का ख्याल रखें कि किसी भी तरह उस शख्स का माली नुकसान ना करें, उसको जिस्मानी किसी भी तरह का नुकसान ना पहुंचाएं, कोई सियासत ना हो, और ना ही किसी और तरह का नुकसान उसके खानदान को पहुंचना चाहिए। वरना हमारा जो उसको समझाने का तरीकेकार होगा उसका कोई फायदा नहीं होगा। लिहाजा रसूल जिस तरह कहता है उससे परहेज कर, उस शख्स को अवॉइड कर अगर वो नहीं समझता। एक जिंदा और बाबरकत चर्च के लिए ये जरूर है कि जितने भी चर्च के लोग हों उनमें एक यूनिटी हो, एक इत्तेहाद हो। और ये जो खत है मैं इसे कहूँगा जरूर आप पढ़ें, क्योंकि आप सब अपनी अपनी जगह पर लीडरशिप में हैं। आप अपने घर में लीडर हैं, आप यूनिटी में भी लीडर हो सकते हैं, अपनी जॉब पर आप लीड करते हो। ये जहां पर हमें चर्च का सेटअप और लीडरशिप की क्वालिटीज और क्राइटेरिया के बारे में बताता है, उसके साथ साथ ये हमारी मदद करता है कि जो हमारी जिंदगी के सेकुलर एरिया हैं उनमें हमें किस तरह एक मसीह करैक्टर को लेकर आना है। लोग आपको इस बात से जानते हैं कि ये एक शख्स मसीह है, ही इज अ क्रिश्चियन। पता है हमारे बाबा क्या कहते थे, मैं बस इसे बंद करने वाला हूँ। हमारे बाबा कहते थे कि हिंदू पाकिस्तान में ये बड़ी मशहूर बात है, यहाँ कुछ लोग विटनेस कर सकते हैं कि एक जो मसीही है, कहते हैं जी उसकी जो टेस्टमनी होती थी, गवाही, उस पर मुजरिम को छोड़ भी दिया जाता था और सजा भी मिलती थी। उसकी वजह वो मसीही करैक्टर था जिसके बारे में दूसरी अक़वाम जानती थी और पहचानती थी कि ये लोग सच बोलते हैं, इनकी जो बात है वो सच्ची है। ये कितनी खुशी की बात थी कि आज भी ऐसे हैं। हाँ, कभी भी अपना दिल को छोटा न करें, आज भी ऐसे लोग हैं जो फिल हकीकत कलाम की बात, जिस तरह यीशु ने कहा हाँ की जगह हाँ, ना की जगह ना करते हैं बगैर किसी इंटरेस्ट के। ऐसे लोग हैं, उन्हीं की वजह से ये सारी ब्लेसिंग हम इधर देखते हैं। कभी भी अपने दिल को छोटा ना करें। हाँ, हम अपने ये भी देखते हैं कि किस तरह कलीसिया में नुकसान पहुंचाने वाले भी नासर हैं, लेकिन हमारा ये ईमान है कि वो लोग जो हैं वो थोड़े हैं। वो लगता है ऐसे जैसे बढ़ रहे हैं और बहुत ज्यादा तादाद में, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ खुदा मुझे है बड़ी कसरत के साथ काम कर रहा है। और फिर आखिर में आयत 12 में यूं लिखा हुआ है, अब इस को पालूस जो है रैप करता है, जैसा कि मैंने पहले मैसेज में कहा था कि
तीतुस को ये आर्जी जो है जिम्मेदारी दी गई थी। और यहाँ पर फिर 2 अशखास के बारे में लिखा है, जब मैं तेरे पास इत्तमास या तुखुस को भेजूं, जो मेरे पास निकोलबस आने की कोशिश करना, क्योंकि मैंने वहां जाड़ा काटने का कसम कर लिया है। तो इन 2 को वो भेजता है। अब आपको इससे अंदाजा होगा कि पहले तीतुस अकेला है, अब वो 2 को भेज रहा है पौलुस, और फिर तीतुस को वापस आने के लिए कहता है। इसका मतलब है इट वाज अ ग्रेट मिशन, वहां बड़ा काम था करने वाला। वो जमीन ज़रखेज़ तो थी, लेकिन वहां कांटे और जड़ी बूटियां बहुत थी। मैं रूहानी जमीन की बात कर रहा हूं, इसलिए उसकी सफाई करना बहुत जरूरी है। और फिर आखिर में जब 15वीं आयत की तरफ जाते हैं तो वहां लिखा है, मेरे सब साथी तुझे सलाम कहते हैं, जो ईमान की रूह से हमें अजीज रखते हैं, उनसे सलाम कहते, तुम सब पर फजल होता रहे। यहाँ पर जो आखिरी आयत है 15वीं आयत जो है, इसका आखिरी हिस्सा, तुम सब पर फजल होता रहे। जब अब तीतुस के खत को हमने खोला तो वहां पर जो फजल और इत्मीनान खुदा बाप हमारे मनजी यीशु मसीह की तरफ से तुझे हासिल होता रहे लिखा गया 4वीं आयत में, तो वो सिर्फ तीतुस के लिए था। अब उसने सारी कलीसिया को इसमें शामिल कर दिया गया है। मेरे अजीजों, ये खत जो है, जैसा कि मैंने कहा, ये लीडरशिप पर है, और इस खत के जो तालीम है वो ये है कि एक चर्च के मेंबर को किस तरह का होना चाहिए, और एक चर्च का जो लीडर है उसको किस तरह अपने चर्च को, अपनी फैमिली को लीड करना चाहिए। अब इस खत के आखिर में जो बात लिखी गई, उससे आपको पता चलता है कि तीतुस ने वो सारा काम जो उसको जिम्मेदारी दी गई थी तकरीबन मुकम्मल कर लिया था। इसलिए पौलुस उसको अब लिखता है कि तो आप वापस आ जा, और ये जो 2 दूसरे शागिर्द थे ये वहां जाएंगे और वहां से भी करेंगे। मेरे अजीजों, इसी तरह चर्च का पैस्टर भी होता है, खानदान का जो सरबराह है वो भी होता है। एक वक्त आता है हम सबको नई जिम्मेदारी में जाना पड़ता है। जो चर्च के लोग होते हैं या खानदान के लोग या कम्युनिटी के, दे शुड बी रेडी टू फिल इन दैट पोजीशन। खुदावन का ये जो कलाम है, ये इसलिए नहीं कि या मैं या दूसरे खादम आपको सुनाए या थोड़ी देर के लिए सुने, तालीम जो है खुश होने, नहीं। आपने ये देखना है कि अगर चले, मैं इसकी मिसाल देता हूँ, अगर हमने इसकी स्टडी की है पिछले 4 जो मैसेज हैं, उसमें मैंने क्या सीखा और अब मैं किस लेवल पर हूं, क्या मैं रेडी हूं अपनी जिम्मेदारी लेने के लिए, क्या डेव रेडी है इस म्यूजिक को बजाने के लिए, क्या दूसरे रेडी हैं, क्या कोई मैसेज शेयर करने के लिए तैयार है, या प्रेसाइडिंग के लिए। मैं वैसे आपको चर्च की चंद जो बातें उनको आपके सामने पॉइंट आउट कर रहा हूं। ये डीप थियोलॉजी नहीं है, वेरी सिंपल सादा सादा बातें हैं। अब ये आपने और मैंने सोचना है कि मेरा जो रूहानी मियार है, मेरी जो रूहानी तरक्की है वो कहाँ है। उन्हें याद दिलाता रहे कि पहले हम क्या थे। पौलुस आज मुझसे और आपसे भी खुदावन में होकर ये सवाल करता है कि न्यू कवनेंट चर्च की कलीसिया, आप पहले कहाँ थे, आज कहाँ हैं, और फ्यूचर में खुदावन अगर आपको इस्तेमाल करता है तो क्या आप उसके लिए तैयार हैं। आई एम अपने सरोवर खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं तेरे उस बड़े फजल के लिए कि खुदावन जब हम गुनाहगार ही थे तो खुदावन आए, खुदा तूने अपने बेटे को भेजा। उस फजल के लिए, उस ग्रेस के लिए तेरा शुक्र है, क्योंकि खुदावन इंसान में कोई ऐसी बात नहीं थी कि वो अपनी कोशिश से निजात पाता, बल्कि तेरे फजल से, तेरे रहम और तरस से आए बाप, हम सब आज ईमानदारों का ग्रोह कहलाते हैं। ये तेरा फजल है जो तूने अपने बेटे इसलिए भी मौत की मार्फत खुदावन अपना फजल जो है वो हम पर किया। ऐ खुदावन तू हमें याद दिला, जिस तरह तेरा रसूल यहाँ लिखता है कि हम याद रखें। काश हम भी खुदावन इस बात को याद रखें कि खुदावन हम अगर इस छत के नीचे इस तेरे घर में हैं तो ये हम अपनी किसी कोशिश से नहीं, बल्कि खुदावन तेरे फजल, रहम, तरस, मेहरबानी और चुनाव की वजह से यहाँ। इसलिए खुदावन हम दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र करते हैं और तेरा ये मिन्नत करते हैं कि तू हमें तैयारी बख्श, ताकि
नई जिम्मेदारी जो तू हमें देना चाहता है अपनी खिदमत के सिलसिले में, उसके लिए हम खुदावन अपना मुहासबा करें, हम परखें, जाने, टटोलें कि हम कहाँ पर हैं, ताकि खुदावन जब तू हमें आवाज दे तो हम सैमुएल की तरह कहें कि मैं हाजिर हूं। खुदावन तू हमारी इस दुआ को सुन। खुदावंद का शुक्र हो उसके ज़िंदगी बख्श कलाम के लिए और उसके बंदा के लिए जिसने हमें ये कलाम फराहम किया। आइए अब हम अपनी दायकियाँ, अपनी शुक्रगुजारियाँ, अपने हदिये नजराने खुदावंद के हुजूर में पेश करें और क्वायर से दरख्वास्त है कि वो हम तो सुना का गीत गाएं और इस दौरान हम अपने हदिये खुदा के हुजूर में पेश करेंगे। ज़बूर नंबर 19 और पेज है 16 पे। आसमान बयान करता खुदा दे कम सारे। आसमान बयान कर दे खुदा दे कम सारे। आसमान बयान कर दे खुदा दे कम सारे। कर दे रब दी बड़याई, कर दे रब दी बड़याई। आसमान बयान कर दे खुदा दे कम सारे। आसमान बयान कर दे खुदा दे कम सारे। जिन्हें करते रहने दे नाना ले गल्ला, जिन्हें करते रहने दे नाना ले गल्ला। रात बख्शी रात नो दनाई, रात बख्शी रात नो दनाई। आसमान बयान कर दे खुदा दे कम सारे। आसमान बयान कर दे खुदा दे कम सारे। ना है जुबान ना आवाज सुनी जाती, ना है जुबान ना आवाज सुनी जाती। तारे ज़मीन विच लाई, तारे ज़मीन विच लाई। आसमान बयान कर दे खुदा दे कम सारे। आसमान बयान कर दे खुदा दे कम सारे। तंबू बनाया रब सूरज के लग, तंबू बनाया रब सूरज के लग। ओना विच रखी उचे आई, ओना विच रखी उचे आई। आसमान बयान कर दे खुदा दे कम सारे। 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 हम दुआ करें, खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। खुदावंद बुजुर्ग आसमानी बाप, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं क्योंकि तू भला है और तेरी शफकत अपनी, तेरी वफादारी कुछ तक रहती है। खुदावंद इस वक्त के लिए जिन्होंने हम सबको अता किया कि हम तेरी हज़ूरी में आकर तेरी शुक्रगुज़ारी कर सकें। बेशक खुदावंद ये तमाम नेमतों का मंबा तू ही है। तो इस मुल्क में हमें लेकर आया, सलामती में रखा, तमाम वसाइल से नवाजा, तमाम बरकत से नवाजा। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। देने वाले हाथों को खुदावंद जो तेरी अंजील की वसत के लिए जिन्होंने हिस्सा डाला है, खुदावंद उनके लिए बरकत चाहता हूँ। और खुदावंद इससे
तेरे नाम को जलाल मिले। खुदावंद तेरी किंगडम में जो है वो बढ़कर पड़े और खुदावंद हम तेरे कामों को अच्छे तरीके से कर सकें। खुदावंद जॉर्ज भाई, सारी फैमिली, सारी कलीसिया के लिए दुआ करता हूँ और बरकत चाहता हूँ। ये दुआ मांगते हैं यीशु मसीह के कादिर जलाली और बाबरकत नाम में। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह करे, इस वजह जैसे आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर हमारे रोज़ के राज जिस तरह हम उसको काम करते हैं, आजमाइश में बादशाह कुदरत जलाल हमेशा करते हैं। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की शराकत और रफ़ाकत इस कलीसिया के साथ और आनंदी कलीसिया के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती है।